Hello everyone, welcome to this new session on XAT preparation. In the previous video on XAT that I uploaded, many of you have commented that I should prepare a separate session for decision making as well. So in this video, we will discuss some tricks and some questions of decision making. So welcome to this session. My name is Ashish and let's start with the proceedings. But before that, let me announce that if you want to ace the decision making section of XAT and you want exhaustive preparation for that, then I am starting a batch specially for XAT decision making that is commencing from 6th of December. So Tuesday, Thursday, Saturday and Sunday 4 days a week क्लास होंगी. टाइमिंग रहेगी 9 PM. जो मेजर क्वेरीज स्टूडेंट्स की आ रही है उनको मैं आंसर कर देता हूँ, सो दैट इट इज सेटल्ड वंस एंड फॉर ऑल. So there will be 10 sessions on decision making. So this will be the most exhaustive course you will have on decision making. Then there will be 3 bonus classes, one on quantitative aptitude, second on verbal ability and third on LRDR. That would be specifically targeting XAT exam. क्योंकि XAT का verbal ability थोड़ा different होता है, उसमें critical reasoning भी आती है, उसमें grammar और fill in the blanks भी आते हैं. So that is why one special class will be dedicated to that. Similarly LR and DI. तो 9 PM पे class start होंगी. Every Tuesday, Thursday, Saturday and Sunday. If you want to enroll for this course, the link is given in the description box. In case these will be live classes, in case due to any XYZ reason you happen to miss the class, then recordings would be made available to the students. So let's move on with the today's agenda. Decision making की हम बात कर रहे थे. So with the help of certain questions we will try to understand this topic. तो उसकी structure क्या होती है, सबसे पहले तो मैं वो बताता हूँ question की. So there will be a paragraph or there will be a collection of paragraph. उसके बाद उस paragraph में क्या होगा, उस paragraph में there will be some problem given to you. paragraph में problem नहीं होगी, paragraph में एक situation होगी and that situation may contain the problem. So there will be a situation or there will be a problem and you need to deal with that situation or you need to solve that problem as a manager. तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या जो भी उस पैराग्राफ में दिया गया है सिचुएशन, उसके हिसाब से यू नीड टू use your logic and you need to solve that particular problem given in the question, or at least you need to tell what appropriate course of action you will take in order to solve that question. तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन का. क्वेश्चन में पैराग्राफ है, पैराग्राफ में एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आप एज ए मैनेजर या जो भी उसका डेजिग्नेशन गिवन है पैराग्राफ में वो अगर आप हैं तो उस सिचुएशन में आप कौन सा एक्शन लेंगे और उसके लिए आपके पास होंगे 1 2 3 4 5 ऑप्शंस. तो ये एक स्ट्रक्चर बताइए अभी मैंने क्वेश्चन की. अब इसमें यूजुअली 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं. टाइप 1 जिसमें स्मॉल पैसेज होता है 50 to 100 वर्ड्स के आसपास, दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन. एंड टाइप 2 जिसमें पूरा लेंदी पैसेज होगा अराउंड 300 to 400 वर्ड्स. तो ये एक पूरा आपका डिसीजन मेकिंग का सेक्शन होता है इस टाइप के क्वेश्चंस. अब सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, दैट वुड मोस्ट लाइकली टू बी अ बिजनेस प्रॉब्लम. अब इशू क्या आता है डिसीजन मेकिंग में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे टेक दिस थिंग वेरी लाइटली. वो सोचते हैं कि यार ये अलग से तो कहीं आता नहीं है किसी और एग्जाम में, तो जैट के लिए क्या ही पढ़ेंगे इसको. दिस इज़ वन मिस्टेक कमिटेड बाय द स्टूडेंट्स. दूसरी मिस्टेक ये होती है कि कैट काफ़ी अच्छा चला जाता है कुछ लोगों का, तो वो सोचते हैं कि कैट में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो वाई टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन दैट. तो जितनी कैट की प्रिपरेशन है उसी से हम दे लेंगे, क्योंकि आरसी के जैसे लगते हैं देखने में क्वेश्चन, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आरसी. तीसरे वो लोग होते हैं जो कैट जिनका ख़राब हो जाता है तो वो वैसे हिम्मत हार चुके होते हैं तो वो वैसे पढ़ना छोड़ देते हैं. दीज आर द 3 टाइप ऑफ कॉमन मिस्टेक्स डन व्हेन इट कम्स टू द एग्जाम लाइक दैट. बट ये तीनों चीज़ें आपको नहीं करनी है. बी सिंसियर वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस. तो इन केस यू वांट टू एनरोल, गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक द डिटेल्स. अब इन क्वेश्चंस को हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे. तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंट टेक्निक्स टू एलिमिनेट द चॉइस. तो वी विल follow the method of elimination. तो एलिमिनेट कैसे करना है वो हम देखेंगे with the help of previous year questions.
टाइप 1 क्वेश्चन हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे सो दैट बिगिनर्स लेवल की अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जाए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और एक बार खुद से देखिए कि इन पांचों में से अगर आप एग्जाम में होंगे तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे. देन कम बैक टू सी द सॉल्यूशन. द क्वेश्चन हियर इज सेइंग यू अ रिक्रूटिंग मैनेजर. तो आपको बता दिया कि आप कौन हैं. आप एक रिक्रूटमेंट मैनेजर हैं. आर इंटरव्यूइंग मयंक. आप मयंक का इंटरव्यू ले रहे हैं. अ हार्ड वर्किंग यंग मैन. तो मयंक कौन है. एक हार्ड वर्किंग यंग मैन हु हैज़ प्रॉब्लम्स इन स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश. So this is the problem with Mayank. He has studied in vernacular medium schools and colleges. So vernacular का मतलब क्या होता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ. That is how you improve your vocabulary. कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं सर vocabulary भी आती है ZAT, SNAP, TIS एट्सेट्रा में, तो उसको इम्प्रूव कैसे करते हो. vocab इम्प्रूव करने के सबसे अच्छा तरीका है whatever you are reading, whenever you come across a new word, आप उसका मीनिंग चेक करिए, उसको नोटबुक में लिखिए और अपनी vocab इम्प्रूव करते जाइए. तो बताइए ज़रा कमेंट सेक्शन में, दूसरों का भला कर दीजिए. कुछ वर्नैक्युलर का मतलब क्या होगा. अमंग्स द फॉलोइंग ऑप्शन व्हाट वुड यू चूज टू डू इफ योर कंपनी हैज़ वैकेंसीज. तो सिचुएशन क्या है. आप एक रिक्रूटमेंट मैनेजर हैं. आपकी कंपनी ने कुछ वैकेंसीज निकाली हैं. एक कैंडिडेट मयंक इंटरव्यू के लिए आया है. मयंक बहुत ही हार्डवर्किंग इंसान है लेकिन मयंक को इंग्लिश की फ्लुएंसी में प्रॉब्लम है. तो अब आप क्या करेंगे. पहला ऑप्शन आई वुड हायर हिम एट ऑल कॉस्ट्स. अब मैंने बताया था आपको सही आंसर सेलेक्ट नहीं करने के बजाय गलत ऑप्शन जो है एलिमिनेट करने. मेथड ऑफ एलिमिनेशन हम यूज़ करेंगे वाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. पहला ऑप्शन है आई वुड हायर हिम एट ऑल कॉस्ट. मतलब कुछ भी हो जाए मैं उसको हायर करके रहूँगा. क्यों भाई, तुम्हारा रिश्तेदार है क्या वो. सो दैट इज़ अ बैड अप्रोच इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. क्योंकि अगर कैंडिडेट सूटेबल नहीं है तो उसको मत हायर करो. एट ऑल कॉस्ट का मतलब क्या होता है. दैट इज़ ए ड्रास्टिक स्टेप. A good manager never takes drastic steps. ध्यान रखिएगा. B option says I would hire him for the job he is good at and provide training in the other areas. That seems reasonably okay. जिस चीज़ में वो अच्छा है उसके लिए उसको हायर कर लो, बाकी चीज़ों में ट्रेनिंग दे दो. That seems to be a good course of action. C says I would hire him for production and finance job. Production and finance job, but not for marketing job, which requires good communication skills. B और C similar से ही ऑप्शन है बट C is more specifically talking about certain jobs. Let's move to D. B और C को अभी हम होल्ड पे रखते हैं. Let's move to D. D says I would ask him to improve his communication skill and come back again. तो मतलब भैया तुम खुद का देख लो, इम्प्रूव करके आ जाओ और अगले साल मिलेंगे या अगले वैकेंसी जब होंगी तब मिलेंगे. दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. सो एज ए मैनेजर यू आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. हमारा स्ट्रक्चर क्या था. स्ट्रक्चर ये था कि देयर इज अ प्रॉब्लम एंड यू नीड टू डील विद द प्रॉब्लम और यू नीड टू सॉल्व देम. यू कैन नॉट डू नथिंग. तो हमने उसको बोल दिया कि भाई चलो ओ स्त्री कल आना, तो ऐसा नहीं होगा. सो डी इज एलिमिनेटेड. E says I would not hire him as he might be a burden on organization because of his poor communication skills. I would not hire him again. He is a hard-working fellow. There is nothing in the passage which says that you should not hire him. तो E is not the correct answer. तो either it is B or it is C. तो हमने क्या किया, मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज़ किया. हमने सबसे पहले जो ऑब्वियस चॉइसेस एलिमिनेट करी जा सकती थी वो करी. अब दो क्लोज चॉइसेस हमारे पास बच गई हैं. आई वुड हायर हिम फॉर द जॉब ही इज़ गुड एट एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग इन द अदर एरियाज. सी सेज आई वुड हायर हिम फॉर प्रोडक्शन एंड फाइनेंस जॉब बट नॉट मार्केटिंग जॉब विच रिक्वायर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. अब सी में इशू ये है कि प्रोडक्शन और फाइनेंस आपको कहा गया कि आप रिक्रूटमेंट मैनेजर हैं. आप किस चीज़ के रिक्रूटमेंट मैनेजर हैं आपको ये नहीं कहा गया. तो आई एम नॉट श्योर कि ये प्रोडक्शन और फाइनेंस में आप हायर भी कर पाएंगे नहीं. सो दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क. सेकेंडली बी सेज कि जिस चीज़ में वो अच्छा है उसके लिए हायर करो एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग इन द अदर एरिया. सो बी इज़ मोर होलिस्टिक ऑप्शन. उसमें वो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं जिसमें वो अच्छा नहीं है. सो बी सीम्स टू बी अ बेटर चॉइस एज कम्पेयर टू सी. सो आई वुड मार्क बी एज द आंसर एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आई होप आपको अप्रोच क्लियर हो गया होगा. सिचुएशन देखिए क्या है, उसके बाद ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू करिए एंड फाइनली मार्क द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. तो एक बार पढ़िए सेकंड क्वेश्चन क्या है एंड देन चेक द आंसर.
This question says Seema was a finance manager in an MNC and felt that gender discrimination at the workplace hampered her career growth. Frustrated, she quit the job and started a company. While starting her company, Seema decided that she should have equal proportion of males and females. Over the next 6 years, Seema emerged as a very successful entrepreneur and expanded her business to 8 locations in the country. However, Seema recently started facing an ethical dilemma because she realized that female employees were not willing to travel across the cities. So that is the problem. Female employees not willing to travel and work late hours as the work required them to do so. Male employees did not hesitate undertaking such work. Seema started to feel the pressure of reducing the proportion of female employees. On the other hand, she is aware that equal representation was one of the strongest reasons for her to have founded the company. What should she do as a conscientious female entrepreneur? So, स्ट्रक्चर क्या है क्वेश्चन की वो देखते हैं. सीमा है, सीमा फ्रस्ट्रेट होकर जॉब छोड़ देती है और उसका विजन जो है कंपनी का, दैट इज टू हैव इक्वल प्रपोर्शन ऑफ मेल्स एंड फीमेल. इसी को ध्यान में रख के उसने कंपनी स्टार्ट की है. उसके बाद उसको एथिकल डायलेमा होता है क्योंकि फीमेल एम्प्लॉयज़ एक तो ट्रैवल करना नहीं चाहती, दूसरा वो लेट आवर्स तक काम नहीं करना चाहती. दैट इज़ द डायलेमा. तो अब वो फीमेल एम्प्लॉयज़ को हटा दे, कम कर दे, दैट इज़ वन ऑप्शन. बट उसको अगर ये करना है तो उसका विजन जो है वो इसके अगेंस्ट जाएगा क्योंकि कंपनी उसने इसलिए स्टार्ट करी थी कि दोनों को इक्वल रख सके. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम. So now let's check the options. A says see if unwilling female employees could be given assignments which do not require travel and involve less overtime. So दो इशू थे फीमेल एम्प्लॉयज़ के, एक तो ट्रैवल, दूसरा लेट आज तक काम नहीं करना था उनको. तो दोनों इशू इसमें टैकल हो गए हैं. तो ए सीम्स टू बी ए गुड चॉइस क्योंकि इट्स टैकलिंग द इशूज द फीमेल एम्प्लॉयज़ आर हैविंग और उसको एम्प्लॉयज़ को निकालना भी नहीं पड़ेगा अगर ये इशू टैकल हो गए तो. B says reduce the number of female employees as it is a business requirement. She should not let anything affect her business. So reduce the number of employees, that will be going against the vision of the company. जिसके ऊपर उसने कंपनी स्टार्ट करी थी उसी के अगेंस्ट ही तो चला जाएगा. So B cannot be the answer. You cannot reduce the number of female employees. C says let the status quo continue. Status quo continue मतलब जो जैसा चल रहा है ऐसे चलने दो, मतलब कुछ मत करो. तो अगेन आपने तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं किया. तो दैट शुड नॉट बी द आंसर. डी सेज henceforth हायर ओनली मेल एम्प्लॉयज. अगेन इट्स ए ड्रास्टिक स्टेप. ए गुड मैनेजर नेवर टेक्स ड्रास्टिक स्टेप्स. henceforth हायर ओनली मेल एम्प्लॉय, फीमेल को हायर ही मत करो. तो ड्रास्टिक स्टेप है और विजन के अगेंस्ट है. हेंस डी इज गॉन. एंड ई से शी शुड क्लोज द बिजनेस. सो अगेन ए ड्रास्टिक स्टेप. बिजनेस बंद कर दो. फीमेल ट्रैवल नहीं करना चाहती तो मैं कंपनी बंद कर देती हूँ, भाड़ में जाओ सब. So that is not the way. So E is gone. So 4 options are eliminated. So A seems to be a clear-cut choice here. That is your answer. So I hope आपको समझ आ रहा है कि ये questions कैसे कैसे solve हो रहे हैं. एक एक ऑप्शन को पढ़िए. सबसे पहले सिचुएशन देखिए क्या है, उस सिचुएशन को डील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. बेस्ट चॉइस शुड बी योर आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन says the city of Nagar has a population of 10 million. 2 million of whom are rich, 3 million poor, 5 million belong to the middle class. Saundarya Cosmetics manufactured and sold beauty products to the rich class at a premium price. Its products were very popular with the customers. Many people from the middle and poor segments of the population aspired to buy these products but could not afford because of the high prices. Of late, सेल्स ग्रोथ हैज़ बीन स्टैगनेटिंग इन द रिच सेगमेंट. अगेन स्टैगनेटिंग वर्ड का मतलब मुझे बताइएगा क्या होगा. वोकैबुलरी इंप्रूव कर लो ज़रा थोड़ी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर सौंदर्य कॉस्मेटिक टू मैक्सिमाइज लॉन्ग टर्म प्रॉफिट. तो सिचुएशन क्या है, 3 टाइप के कस्टमर हैं. कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3. कस्टमर 1 है 10 मिलियन, सॉरी टोटल आर 10 मिलियन. कस्टमर 1 इज 2 million, then 3 million and then 5 million. These are rich customers. 3 million are poor customers and 5 million belong to middle class. That is the situation. अब वो रिच कस्टमर्स को टारगेट करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड दे चार्ज अ प्रीमियम प्राइस.
अब वो प्रोडक्ट काफ़ी पॉपुलर हो जाता है, तो ये जो बाकी दोनों लोग हैं दे ऑल्सो एस्पायर टू बाई दोज प्रोडक्ट्स. दैट इज द सिचुएशन. एंड सेल्स हैव बीन स्टैग्नेटिंग इन द रिच वाला सेगमेंट. तो इसकी सेल्स जो है स्टैग्नेट हो रही है. ये लोग एस्पायर कर रहे हैं कि हमें भी ये प्रोडक्ट दे दे कोई. तो ऐसे में उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन. ए ऑप्शन से सेल द सेम प्रोडक्ट एट लोअर प्राइसेस टू मिडिल एंड पुअर क्लासेस. सेल द सेम प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस मतलब ये प्रोडक्ट मैं तुमको दूंगा लेट से 1,000 रुपये में, और इनको वही सेम प्रोडक्ट मैं दूंगा लेट से 500 रुपये में. दैट इज अनएथिकल. अनएथिकल. ध्यान रखिए, एक्सेलआरआई इज सच अ कॉलेज विच प्लेज वेरी मच वैल्यू ऑन एथिक्स. तो आप कभी भी डिसीजन मेकिंग में कोई भी ऐसा ऑप्शन मार्क नहीं करेंगे जो कि अनएथिकल हो. चोरी चकारी वाला काम नहीं करेंगे आप, ध्यान रखिएगा. So A is simply eliminated. B says sell similar products at a different quality standards with different brand names to middle class and poor class. Now it makes sense. आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड अलग और ब्रांड नेम भी अलग है. पहले ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम थी, वो सेम ही प्रोडक्ट बस प्राइस चेंज कर दो उनका. सो दैट इज अनएथिकल. सो बी सीम्स ऑल राइट. सी सेज सेल इट्स प्रोडक्ट अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम्स टू मिडिल एंड पुअर क्लास. तो वही प्रोडक्ट बस ब्रांड नेम बदल दो और फिर से मिडिल और पुअर क्लास को चिपका दो. अगेन द सेम इशू, इट्स अनएथिकल. डी सेज कंटिन्यू टू टारगेट रिच ओनली एंड होप दैट टुडेज मिडिल क्लास वुड बी टुमारोज रिच क्लास. तो आप कुछ मत करो, आप बैठ जाओ, जो कर रहे थे वो करते रहो, एंड होप, उम्मीद करिए कि आज जो गरीब है कल वो अमीर भी होगा, एंड तब हम उसको वो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे. सो दैट इज अगेन डूइंग नथिंग. तो यू आर नॉट सॉल्विंग द इशू, यू आर सिंपली वेटिंग. सो डी इज incorrect. E says target middle class as it is the largest segment and forget about the rich. What do you mean? Rich class को तो तुम टारगेट ही कर रहे थे शुरू से, उसी की वजह से तुम्हारा ब्रांड बना है, उसी को तुम फॉरगेट कर रहे हो. सो दैट इज डेफिनेटली नॉट अ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट वाला स्ट्रेटेजी. सो E is gone. So clearly we have a single choice, that is B option. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व. B is the correct answer. Let's move to the next question. This question says a database software manufacturing company found out that a product it has launched recently had a few bugs. The product had already been bought by more than 1 million customers. The company realized that bugs could cost its customers significantly. However, if it informs the customers about the bug, it feared losing credibility. What would be the most ethical option for the company? तो सबसे पहले तो कोई मुझे एथिक्स की डेफिनेशन बता दो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अगर डेफिनेशन ही नहीं पता है कि एथिक्स होते क्या हैं तो एथिकल ऑप्शन कैसे लगाओगे. सो समवन प्लीज़ टेल मी द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स. एथिक्स का एक कोर्स होता है एक्सेलआरआई में, ध्यान रखिएगा, और वो कंपलसरी होता है सबके लिए अटेंड करना, तो इसलिए पूछ रहा हूँ. सो द सिचुएशन हियर इज़ दैट देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर कंपनी, उसके किसी प्रोडक्ट में बग्स हैं, ऑलरेडी मिलियन कस्टमर्स खरीद चुके हैं. तो कंपनी अब सोच रही है कि अगर लोगों को बता दिया तो क्रेडिबिलिटी लूज हो जाएगी, तो अब उनको क्या करना चाहिए, एंड मोस्ट एथिकल ऑप्शन आपको चूज़ करना है. यानी जब ये लाइन आपके पास आ गई है, दैट मीन्स प्रॉफिट आपके लिए सेकेंडरी हो जाएगा, एथिक्स आपके लिए प्राइमरी हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्शन. ए से इज अपोलोजाइज एंड फिक्स अप द बग फॉर ऑल कस्टमर्स इवन इफ इट हैज़ टू इनकर लॉसेस. तो ए से माफ़ी मांग लो और उनकी बग ठीक कर दो चाहे नुकसान हो जाए. सो ए सीम्स a reasonable choice. B says do not tell customer about bugs. Do not tell customer, छिपा लो सब कुछ. So that is unethical. That is unethical. आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पढ़ लेता हूँ फिर भी. About bugs and remove only when customer face problems, even if it means losses to the customer. Even if it means losses for the customer. तो जब कस्टमर आएगा कि देखो मेरा प्रोडक्ट ख़राब है, तब उसको ठीक कर देना, लेकिन उनको कुछ बताओ मत, चोरी कर लो यानी. So B is incorrect. C says keep silent and do nothing. तो ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा. डिसीजन मेकिंग में ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा तो सबसे पहले उसको एलिमिनेट कर देना. कीप साइलेंट मतलब वही जो पहले आप कर रहे थे, डू नॉट टेल कस्टमर, अनएथिकल. डी सेज कीप साइलेंट बट इंट्रोड्यूस एन इम्प्रूव प्रोडक्ट दैट इज बग फ्री एट द अर्लीस्ट. तो
अभी आप चुप रहो और नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दो जो कि बग फ्री हो. और व्हाट अबाउट दोज 1 मिलियन कस्टमर जिन्होंने खरीद लिया, उनका क्या करें? अनएथिकल. यू कैन नॉट कीप साइलेंट अबाउट इट. डी इज गॉन. ई सेज टेक द प्रोडक्ट ऑफ द मार्केट एंड अपोलोजाइज टू द कस्टमर. ई ऑल्सो सीम्स टू बी ए रीजनेबल चॉइस. अब इसमें ए और ई में आपके पास थोड़ा कंफ्यूजन है. A says apologize and fix up the bug for all the customers, even if it has to incur losses. E says take the product off the market and apologize to customer. अब ZAT में ये क्वेश्चन आया था और मैक्सिमम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उन्होंने ई ऑप्शन इसका बताया था अपनी आंसर की में. लेकिन जब XLRI की ऑफिशियल आंसर की आई तो उन्होंने ए ऑप्शन को करेक्ट बताया था. वाई? क्योंकि मैंने अभी बताया XLRI प्लेज ए हाई वैल्यू ऑन एथिक्स. तो एथिक्स से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बड़े ही आपको प्रॉफिट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए. सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कोई आइडिया नहीं है डिसीजन मेकिंग में कैसे अप्रोच करना होता है. हालांकि वो कोर्सेज चलाते हैं, दैट इज़ देयर प्रोफेशन, लेकिन समटाइम्स दे कैन नॉट नो कि XLRI में जो मैनेजर्स होते हैं उनका थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा और क्या वो कॉलेज देखता है. दैट इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट द कॉलेज वैल्यूज़ एंड द कॉलेज वैल्यूज़ एथिक्स. तो पहले ऑप्शन में इशू क्या था कि आपको भले ही नुकसान हो जाए लेकिन यू नीड टू अपोलोजाइज एंड फिक्स अप द बग्स. दैट इज़ द मोर एथिकल चॉइस. ई ऑप्शन में प्रॉब्लम क्या थी? आपने प्रोडक्ट तो टेक ऑफ कर दिया मार्केट से, लेकिन 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 व्हाट अबाउट अगेन दीज कस्टमर्स जिन्होंने ऑलरेडी खरीद लिया था. तो इसलिए ए इज़ अ मोर सेंसिबल चॉइस एंड करेक्ट चॉइस इन दिस केस. एंड दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन. आई होप आपको डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन का थोड़ा आइडिया लगा होगा. सो थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. विल मीट अगेन विद समथिंग न्यू. टिल देन कीप लर्निंग.